progress through today's program. We have among us our chief guest, Dr. Vaibhav Nima, sir. Sir is an assistant professor of electronics and telecommunication department at IIT DAVV Indore. Sir has done his PhD from DAVV Indore in 2012. Sir has working experience of 17 years in teaching and 10 years of research. Sir has specialization in IoT, low power VLSI system and memory design innovation teaching methods. Sir also received three Best Paper Award Certificate of Appreciation for Research and Academic Contribution at DAVV, Award for Traffic Idea for Smart City Project and Best Poster Award in IAS 2016 at IIT Indore. Sir is also a member of VNSI IEEE Computer Society Technical Committee, co-editor, member of Journal of Nanoscience and Quantum Physics, and many more. Now I would like to invite Mr. Poonam Lihare ma'am, Professor of Miss Poonam Lihare ma'am, Professor of Electronics and Communication Department to facilitate our chief guest, Dr. Vaibhav Nima sir, with a sapling gesture symbolizing our gratitude for the presence and wisdom. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would request Dr. Vaibhav Nima sir to uphold the dice. Welcome, sir. So good afternoon to all. So this topic is Introduction in MOS Physics, Scaling Effects on MOS-based Semiconductor Devices. So actually the lecture is divided into three parts. The first will give the information about the semiconductor devices, what is semiconductor devices, or what is the importance of these semiconductor devices. Then second part is basic theory of MOS transistors, how the MOS transistor works, mathematical modeling of the MOS transistors. And the third is the future devices which are coming up, or what are the challenges we are facing for the semiconductor industries and how to overcome these challenges, and what are the other devices, models or devices are available for the future semiconductor VLSI circuits and systems. So this is a simple history or evaluation of semiconductor devices, which started from वैक्यूम ट्यूब्स इन 1941. इसके पहले भी बहुत सारा था पर वो सब छोड़ दिया, हमें ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने की. तो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद 1941 विद द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब, एंड वैक्यूम ट्यूब्स आर बल्की in nature, their reliability is very low, so they replaced, and power hungry, they required a power, very large power to operate. So that device that replaced in 1948 with the simple transistor. Further in 1955 PNP three terminal device. In 1957 NPN transistor with silicon. The 55 was the germanium transistor, 57 was silicon transistors. Then 1967 we have a first integrated circuit in Bell Laboratory. Then in 1997 we have a first microprocessor. The size of this microprocessor is almost the size of the simple coin, smaller than the simple coin. So that, and in the future, in the today's world, we have, in this 1997 we have around 23,000 number of transistors in 1997, but at present we have trillions of transistors in a single processor. And apart from that, we have now in 2023 we have a system on chip. A complete system is on single piece of silicon, where we have a processing unit, we have auxiliary circuits, peripheral circuits, all are placed on the single piece of silicon. So this is only because of the advancement in technology. And nowadays India government is also providing lots of facilities, or they are promoting this field VLSI, because we are lagging in VLSI. We mostly import the chips from the China, Philippines or East Asian countries, and their export duty is very high. So our Prime Minister vision is that we should be a self-resilient in case of VLSI. So for that they are promoting in that, and the various project and schemes are there. I'll talk about that also. So that is the first transistor, that is of germanium transistor. Burdin and Bertin built it, the point contact transistors. They made it from the strip of the gold foil and the plastic triangle, pushed down into the contact with the slab of the germanium. So the first transistor was in 1947. It's a germanium kind of transistor. If you look at this closer look of these transistors, so this was the first practical picture of this 1947 transistors, where we have a collector, emitter, base, three terminal devices, and that is made up of germanium. The silver plating is there, the gold plating is there, that is to be a base. This is germanium plate, and it's a emitter to two
further contacts. One is a collector and second is a emitter. So it's the first practical view of the transistors. Then at the same time, in other university, the other Bell laboratory, the Shockley made a junction transistors. That is not junction transistor. They made the junction transistor. The transistors were more practical and easier to fabricate. The junction transistor become the central devices for the electronic age. So emitter, collector and base is there. It's the first junction transistors. Then commercialization of these transistors in 1950 by the Sony, and the United States, they use the transistors primarily for the computers and military uses. So the transistor first invented for mainly for the military uses of US government, by the US government. Now they commercialize this, the Sony commercialized this. In 1955, the foundation of Shockley Semiconductor in Silicon Valley. This is the first picture of the Silicon Valley, the first semiconductor company in the Silicon Valley. And now we have the lots of more than 3,000 companies. The silicon companies are there in Silicon Valley. They are working on semiconductors and semiconductor technologies. So 1957 जो हुआ the first is funded by Fairchild Semiconductor. ये 8 लोग involved थे सब में जिन्होंने funding किया Fairchild Semiconductor को, और first microchip कि हम जिसको बोलते हैं integrated circuit was developed. They are the founder of that. 1958, the Jack Kilby of Texas Instrumentation invented the integrated circuit. It occurred to him, this is the first part of the integrated circuit where we have not a single transistor, we have a multiple transistors, some resistance and capacitors on the single piece of silicon. So it's a first integrated circuit. Then the first commercial model of the integrated circuit is in 1958 with a single device that contained the interconnected arrays of elements like the transistor, resistance, capacitor and the electrical circuits contained in silicon wafers. It's a Gordon Moore, and he funded and invented this first integrated circuit. Then in 1968, the first company जो stock market में आई, that is to be Intel, in Noisy and Golden Moods, who's of this 8 others, Andrew Murray's दो आठ थे उसके पहले, they invented the first, they introduced the first company that is to be Intel in 1968. तो ये सारा तो हिस्ट्री हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर्स कहाँ से आया, क्या किया. अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई द ट्रांजिस्टर इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी. तो ट्रांजिस्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट वी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वी रिक्वायर्ड बेसिक 2 प्रिंसिपल चाहिए हमको. फॉर डिजिटल सर्किटरी व्हाट वी रिक्वायर्ड स्विचिंग एक्टिविटीज, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ. वी रिक्वायर्ड व्हेन वी पुट इट ऑन द करंट विल फ्लो, एंड हम ऑफ करें तो करंट जीरो हो जाए. बस 2 चीज़ें हमें चाहिए और इसमें ही सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बसा हुआ है. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट इज टू बी एम्पलीफिकेशन. सो व्हाट वी रिक्वायर टू बी एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स. द सिग्नल इज देयर, द सिग्नल पावर कम है तो हम उसको एम्पलीफाई करते ताकि वो दूर तक ट्रैवल कर पाए. बट वो तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ. पहला तो सबसे पहला जो इन्वेंशन था और सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्विचिंग एक्टिविटी करनी है कि इट शुड बी स्विच ऑन और स्विच ऑफ. और अभी जितना भी हो रहा है सब डिवाइसेज वो ऑन और ऑफ पे ही है. अब ऑन ऑफ पे ये है कि पहले हमारे पास वोल्टेजेस बहुत सारे थे, ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं थी. अब हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं. सप्लाई वोल्टेज कम है, पावर हमारे पास कम है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, उन सबको मैनेज करना है हमें. तो नया इन्वेंशन हो रहा है, पर सबका प्रिंसिपल है कि ऑन ऑफ कैसे करना है. तो ट्रांजिस्टर कहाँ से कैसे शुरू हुआ ट्रांजिस्टर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा याद रहते हैं. मेरे लैब में भी लगा है कि ट्रांजिस्टर मतलब हमें अगर कोई फिजिकल सिस्टम बनाना है तो व्हाट वी रिक्वायर्ड, डिजिटल फिजिकल सिस्टम की बात करें तो वी रिक्वायर्ड अ बिट इन्फॉर्मेशन. बिट इन्फॉर्मेशन मीन्स एक ऐसा बिट जो कि एक 1 को और 0 को रिप्रेजेंट कर पाए. एक वोल्टेज लेवल दैट रिप्रेजेंट द 1 एंड द सेकंड वोल्टेज लेवल दैट रिप्रेजेंट द 0. अब 0 और 1 के बीच में हमें रिकॉग्नाइज स्टेट, मतलब इन दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए. अब हम किसको बोलेंगे 0, किसको बोलेंगे 1. मान लीजिए कि 0 वोल्टेज है एंड 0.1 वोल्टेज को अगर 1 वोल्टेज मानने लग जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. द रेंज इज वेरी लिमिटेड. इस रेंज को किसी भी सेंसर के थ्रू रिकॉग्नाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो देयर शुड बी सफिशिएंट डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल शुड बी देयर so that we can easily recognize that कि ये लेवल होगा 0 वोल्टेज लेवल होगा and that voltage is to be a 1 वोल्टेज लेवल. तो सबसे पहला जो इन्वेंशन है, अगर आप अमेजन पे जाएंगे तो बुक है कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स. तो उन्होंने सारे वर्ड्स लिख रखे हैं. जॉन बर्डिन और ब्रेडिन ने अपनी पूरी बुक लिख रखी है कि हमारे पास ये थॉट्स कैसे आया कि हमें कोई डिवाइसेस बनाना है. तो फर्स्ट पेज की उनकी जो बुक है उस पर ये लिखा हुआ है. बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि इन्वेंशन कैसे, उन्होंने हर इवेंट को मार्क कर रखा है कि हमने ये शुरू किया, हमने ये सोचा तो ऐसा हुआ, फिर हमने ये प्रैक्टिकल्स किए. तो उन्होंने इस ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दे ट्राइड अराउंड मोर देन 1000 कॉम्बिनेशंस. कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कहाँ होना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए. और आफ्टर दैट थाउजेंड्स फेलियर हुआ. उसके बाद जब जैक किल्बे ने इन्वेंट किया तो देन दे डिसाइडेड कि अच्छा ये तो हमने पहले कर चुके थे. तो दे वापस रिवर्स री इंजीनियरिंग करके उन्होंने वापस से इन्वेंशन किया उसका.
तो दैट इज टू बी अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसी भी सर्किट के लिए हमें है कि अगर कोई डिजिटल सर्किट है तो वी इजीली वी कैन रिकॉग्नाइज दैट कि ये वोल्टेज लेवल 0 वोल्टेज लेवल है और ये वोल्टेज लेवल 1 वोल्टेज लेवल है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन हमें ये है कि इन दोनों वोल्टेज के बीच में स्विचिंग कैसे करना है। हमें कोई सर्किट को फिक्स नहीं रखना है कि वो 0 पे है तो 0 पे रहेगा या 1 पे है तो 1 पे रहेगा। व्हाट वी रिक्वायर्ड दैट सर्किट शुड हैव अ बिहेवियर ऑफ स्विचिंग, मतलब हमें जब चाहिए तब 0 हो जाए, जब हमें चाहिए जब वो 1 हो जाए। तो दो एक्टिविटीज हमें करना है, एक तो रिकॉग्नाइजेशन लेवल शुड बी देयर एंड स्विचिंग एक्टिविटी शुड बी देयर। तो वो दोनों कैसे अचीव करें, तो फर्स्ट मॉडल यहीं से आया, वो कैसे अचीव करें। तो ये प्रैक्टिकल मॉडल है कि पार्टिकल्स की लोकेशन से हम ये पता करें कि अगर पार्टिकल्स जो है वो राइट साइड में है किसी भी मटेरियल में तो हम उसको 1 बोल दें, अगर लेफ्ट साइड में तो उसको 0 बोल दें। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 एंड 1 0 रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हमें ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अगर राइट साइड हो तो 1 होगा, लेफ्ट साइड होगा तो 0 होगा। बट स्विचिंग कैसे करें, मेन जो हमारा जो मेन चैलेंज था कि इनको स्विचिंग कैसे करें, हम 1 को 0 में या 0 को 1 में कैसे कन्वर्ट करें। तो वी कैन कन्वर्ट दैट विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा, उसका वीडियो वो चल नहीं रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम कैसे कन्वर्ट करें, तो एक बार बैक ले लीजिए प्लीज। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट द 1 to 0 और 0 to 1 कैसे बिट में कन्वर्ट करें, तो वी कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस बैरियर। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे पास दो मान लीजिए मटेरियल्स या 2 बैंक हैं जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और बीच में हमें एक बैरियर बनाना है। जब हम चाहें तब बैरियर को हम नीचे कर दें ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, और जब चाहें जब बैरियर को बढ़ा दें ताकि एक जगह से पानी को हम दूसरी जगह पे रोक पाए। सेम कॉन्सेप्ट ये था। तो बैरियर अब कैसे बनाए, हाउ डू वी डिजाइन दिस बैरियर। अब इलेक्ट्रॉनिक बैरियर कैसे बनाए, तो इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, मटेरियल का मिक्सिंग करें। तो हमने क्या किया, 2 हाईली डोप्ड मटेरियल लिए, उसके बीच में पॉलीसिलिकॉन डाल दिया, तो देयर प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, तो इट विल क्रिएट अ बैरियर। बैरियर कैसे बना कि अगर इस 1 को, ये अभी 1 स्टेट में है, अगर मुझे इसको 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट दिस बॉल इस तरफ जंप कर जाए और वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। और अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो वापस से इधर आ जाए। तो 0-1 कन्वर्जन में कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो प्रैक्टिकली ऐसे इंप्लीमेंट किया। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने 2 n रीजन ले लिया और बीच में p रीजन बना दिया। तो देयर इज अ बैंडिंग, द एनर्जी बैंड्स होते हैं, देयर इज अ बैंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड, और जैसे एनर्जी बैंड डिफरेंस होगा, जैसे ही बैंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स होगा तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ अ पोटेंशियल बैरियर इज देयर। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे इतना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि चार्ज यहां से यहां चले जाए, और जब मुझे रिवर्स करना है तो चार्ज यहां से चले जाएगा। मींस अ पोटेंशियल इज देयर, पोटेंशियल बैरियर इज देयर। अब इस बैरियर को कंट्रोल कैसे करें, तो बैरियर को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके थे। जब ट्रांजिस्टर्स की बात आई तो उन्होंने कंट्रोल से करंट बैरियर को कंट्रोल किया, पर जब मॉसफेट की बात आई तो उन्होंने इसको वोल्टेज से कंट्रोल किया। दैट इज नोन टू बी अ फील्ड कंट्रोल डिवाइसेस, फील्ड इफेक्ट डिवाइस हम बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको, इस बैरियर की हाइट को हमने कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस। अब ये सिंपल मॉस ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर दैट कैन एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर। The ability to change from these 2 states enable the devices switching और amplification। यही है कि सिंपल एक डिवाइसेस हैं, एक मॉसफेट है जिसमें 2 heavily doped रीजन है, एक गेट है, बीच में ऑक्साइड लेयर है, नीचे सिलिकॉन है। इस डिवाइसेस को, इस डिवाइस में 3 टर्मिनल्स हैं, और बाय अप्लाइंग अ डिफरेंट पोटेंशियल एट द डिफरेंट स्टेजेस वी कैन ट्रीट दिस डिवाइसेस एज टू बी इंसुलेटर, मींस क्लोज ओपन स्विच, और कंडक्टर मींस अ क्लोज स्विच। हम इस डिवाइसेस को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। अगर इस पे अप्लाई गेट पोटेंशियल 0 कर दें तो इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, और अगर हम इस पे सफिशिएंट गेट पोटेंशियल लगाते हैं तो इट कैन एक्ट एज ए कंडक्टर। तो हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क, द ट्रांजिस्टर कैन फंक्शन एज ए इंसुलेटर कंडक्टर। द ट्रांजिस्टर्स एबिलिटी टू फ्लक्चुएट बिटवीन दीज 2 स्टेट्स दैट इनेबल्स ऑफ स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन। 2 स्टेट्स में हमें स्विच करना है। दिस ट्रांजिस्टर हैज मेनी एप्लीकेशन बट ओनली द 2 बेसिक फंक्शन, स्विचिंग एंड मॉड्यूलेशन। इन द सिंपलेस्ट सेंस द ट्रांजिस्टर वर्क्स लाइक अ डिमर। अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रांजिस्टर को कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो इस प्रैक्टिकल स्विच से हम पता कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का जो इज एक्टिंग सेम एज अ डिस डिमर। अगर हमें स्विच को ऑन ऑफ करना है, हमें करंट को चेंज करना है, तो करंट को कैसे चेंज कर रहे हैं, मॉसफेट में कैसे चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गेट टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज। कि अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब जैसे जैसे गेट टू सोर्सेज वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे, करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी सोर्स और ड्रेन के बीच में। सो दैट इज जनरली एक्ट एज a dimmer। ये है, both the dimmers and the transistors can control the current flow, both can act as a switch and as a modulator or amplifier. The important difference is that the hand operating, the transistor is a
मिलियंस ऑफ द टाइम्स फास्टर। जो ट्रांजिस्टर होता है, जो हमारा ये डीमर स्विच है, ये हैंड ऑपरेशन है, हमको हाथ से बंद करना पड़ता है, मैकेनिकल है प्रोसेस है। बट जो ट्रांजिस्टर है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, मीन्स हम उसको करंट और वोल्टेज से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये फास्टर है, वो स्लोअर है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ट्रांजिस्टर आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं तो मेनली सिलिकॉन पे काम करता हूँ, मैडम आर्सेनाइड पे काम करते हैं खूब सारा, क्योंकि मैडम जो टेम्परेचर रेंज इज हायर, गैलियम आर्सेनाइड की टेम्परेचर रेंज हायर है, फास्टर डिवाइसेस है। सिलिकॉन में जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन है उसमें हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करना है, हमें एक मोबिलिटी ऑफ इफेक्ट्स हैं, हम दूसरे पैरामीटर्स को चेंज करके भी कर सकते हैं, मोबिलिटी सैचुरेशन वगैरह अदर, अगर हम बात करेंगे अदर डिवाइसेस की, उस बात करते हैं। दिस मटेरियल्स कैरी द इलेक्ट्रिसिटी नॉट वेल इनफ टू बी कॉल्ड एज ए कंडक्टर, नॉट बैडली इनफ टू बी कॉल्ड एज ए इंसुलेटर। ये दोनों तरफ से काम कर सकता है। Hence, their name is semiconductor. The importance of the transistor is in ability to control their own semiconductor, the namely acting like a conductor when needed as an insulator. जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कंडक्टर की तरह एक्ट करेंगे, जब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसके इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। यू कैन अब सेकेंड एग्जाम्पल है कि यू कैन कंपेयर द ट्रांजिस्टर एज ऑर्डिनरी वाटर टैप की तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि द वाटर एंटर द टैप इन द पाइपलाइन फ्रॉम द वाटर डिस्ट्रीब्यूटर विच वुड करस्पॉन्ड टू द सोर्स इन द ट्रांजिस्टर्स। जो टैप हो गया वो हमारा सोर्स हो गया, जहाँ से टंकी लगी वो सोर्स है, बाकी जो टैप का आउटपुट है वो ड्रेन है, और बीच में जो हमारा वॉल्व है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज टू बी अ गेट टर्मिनल। तो गेट टर्मिनल हमारा कंट्रोल करता है कि कितना पानी हमें फ्लो कराना है उस टैप से, तो दैट इज टू बी इक्विवेलेंट टू बी अ मॉसफेट। अब ट्रांजिस्टर जो बनता है दैट इज टू बी सिलिकॉन। हम सिलिकॉन डिवाइसेस की बात करें, सिलिकॉन इज अ ग्रे कलर्ड एलिमेंट्स विद द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इट इज अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ आफ्टर द ऑक्सीजन। The silicon is always found in combined form in the nature, often with the oxygen or the quartz. It's found to be rock and silicon side. अब ये इतना सिंपल नहीं है कि सिलिकॉन को हमने रॉक सॉल्ट लिया है और उससे हम सिलिकॉन डिवाइसेस बना दें, तो बहुत सारी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं एक सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए। तो कुछ अगर हमें सिलिकॉन की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, मतलब जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर वी हैव अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर्स, और वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए। तो व्हाट वी डू विल परफॉर्म सम डोपिंग। तो हम डोपिंग के थ्रू क्या करते हैं, एन टाइप और पी टाइप ऑफ डोपिंग के थ्रू हम नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स को बढ़ाते हैं एट द रूम टेम्परेचर पे। तो मुझे अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चाहिए रूम टेम्परेचर पे, तो मैं डोपिंग करता हूँ। दो तरह की डोपिंग होती है, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, वो सभी को पता है। एक एन टाइप ऑफ डोपिंग और पी टाइप ऑफ डोपिंग हम जनरली यूज करते हैं किसी सर्किट्स में या डिवाइसेस में। एक डोनर डोपिंग है, एक एक्सेप्टर डोपिंग है। डोनर डोपिंग क्या क्रिएट करती है, इट विल क्रिएट एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स, एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल प्रोवाइड करती है सो दैट अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड तो ईजी हो जाए, और द चार्ज जो हमारा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज है उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाए। सेम एक्सेप्टर डोपिंग जो करता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट करता है नियर टू बी द कंडक्शन बैंड सो दैट इट विल क्रिएट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट करना है तो वी डू द डोनर काइंड ऑफ डोपिंग, और अगर हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करना है तो वी डू द एक्सेप्टर टाइप्स ऑफ डोपिंग। देन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्रोसेस होता है, इट यूज्ड टू बी क्रिएटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। एक क्लोज रूम, क्लीन रूम इफेक्ट होता है, उसके अंदर हम करते हैं, एंड इट रिक्वायर्ड टू बी 6 to 8 weeks। अगर हमें कोई डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर सर्किट बनाना है, तो इट डन इन अ क्लीन रूम। क्लीन रूम मतलब बहुत सारी लेवल्स ऑफ क्लीन रूम होते हैं, 1000 लेवल क्लीन रूम, 10 लेवल क्लीन रूम, 1000 लेवल क्लीन रूम। तो वी रिक्वायर्ड टू बी फैब्रिकेटेड अ सर्किट इन यूजिंग द क्लीन रूम, एंड किसी भी सर्किट को बनाने में इट टुक 6 to 8 weeks। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री had revenue that reached to be a 515.1 billion US dollars in 2023। मतलब it's very after the petroleum, जो सबसे जो first imported या फिर जो revenue है that is to be a 515.1 billion dollars है। Mainly जो semiconductor devices हैं they are to be microcontrollers, DSPs, processor and microprocessor that has to be center of the IC revolution since the beginning। तो सबसे पहले से ही कंट्रोलर्स, डीएसपी प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर थे। द पर्सनल कंप्यूटर्स जो था इसको बूम किया, स्मार्टफोन्स, हमारे एंटरटेनमेंट कंसोल्स, नोटबुक्स और टैबलेट्स, इन सब ने इस मार्केट को एकदम बूम किया 2000 अभी। और लार्जेस्ट कंपनीज दैट इंडस्ट्री लाइक द इंटेल विद द 90 बिलियंस रेवेन्यू इन 2023, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक द सेकंड, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन, तोशिबा राउंड ऑफ द 5 कंपनीज हैं जो कि मेनली लीडिंग कंपनीज हैं इन VLSI इंडस्ट्री। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें
तो इंटेल है, बट इंटेल को भी छोड़ दिया पीछे TSMC ने, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देन ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और IBM. वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर इन मैन्युफैक्चरिंग. द फैब्रिकेशन में बहुत कम इंडस्ट्री काम करती है. मेनली जितनी इंडस्ट्रीज हैं वेरियस है वो सब डिजाइनिंग में है. तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो TSMC, इंटेल, ST और IBM, वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर, क्योंकि द ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी हाई. अभी इंडिया में एक प्रपोज हुआ है फैब्रिकेशन फैसिलिटी विद वेदांता ग्रुप एंड फॉक्सकॉम. शायद से उन दोनों का वेंचर था, वो टूट गया वापस से. तो नाउ द वेदांता इज इंडिपेंडेंटली डेवलपिंग अ फैसिलिटी फॉर LCD डिस्प्लेज. LCD डिस्प्लेज के लिए जितनी भी ICs बनेगी उन सबकी फैब्रिकेशन यूनिट, अहमदाबाद के पास कोई यूनिट है, वहाँ पे बनाने का है. तो इंडिया में अभी शुरू हुआ है. इंडिया में एक ही लैब है जो कि फैब्रिकेट करती है, कमर्शियल फैब्रिकेशन करती है. दैट इज टू बी SCL सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड. और उनके पास भी जो अभी टेक्नोलॉजी नोड है, इट्स 180 नैनोमीटर्स, जो जनरली इसरो के लिए यूज करते हैं. तो इसरो सैटेलाइट के लिए या फिर डिफेंस के लिए जितने भी उन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स या ICs डिजाइन करनी होती हैं, दे फैब्रिकेटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड. क्योंकि डिफेंस के लिए या फिर स्पेस एप्लीकेशंस के लिए फैब्रिकेशन कराना कहीं बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट्स डिफिकल्ट. हो सकता है कि उसको कॉपीराइट है, कॉपी कर ले आपके डेटास को. तो गवर्नमेंट इसको भी बहुत इनिशिएटिव या बहुत पुश कर रही है कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की जो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज हो, दैट टू बी अराउंड 90 नैनोमीटर्स और टू बी 45 नैनोमीटर्स. अभी टेक्नोलॉजी नोड्स इंडिपेंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी नोड अभी डेवलप नहीं हुए हैं, बट 180 नैनोमीटर्स की जो टेक्नोलॉजी नोड्स हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और उससे बहुत सारी डिवाइसेस बनी हैं. एक हमारा प्रोजेक्ट था विद IIT इंदौर, तो वी ऑलरेडी डेवलप अ मेमोरी विद यूजिंग 180 नैनोमीटर SCL टेक्नोलॉजी नोड्स. तो SCL इज अ फैब्रिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे. जैसे मैडम बता रहे हैं कि अगर कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप अगर रिसर्च बेस पे आपको सिंपल डिवाइसेस बनाना है तो IIT बॉम्बे और IISc बेंगलोर सपोर्ट करता है. पर आपको कमर्शियल कोई IC बनाना है या प्रोटोटाइप बनाना है या फिर IPs बनाना है तो आप SCL से भी बात कर सकते हैं. SCL हर 6 मंथ में उनकी जो वेफर्स होती हैं, वेफर्स पे अगर कुछ स्पेस बचता है कमर्शियल के लिए तो वो ओपन करती है कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सर्किट डिजाइनिंग अगर उनको लगा कि क्लीन है, LVS वगैरह किया हुआ है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना फैब्रिकेशन कर सकते हैं. टेस्टिंग के लिए आपको फिर कहीं और जाना पड़ेगा. टेस्टिंग के लिए IIT बॉम्बे और IISc बेंगलोर हैं. तो अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट है या फिर कमर्शियल कोई IC है या फिर आपको लगता है कि कमर्शियल इसकी बहुत सारी मार्केट वैल्यूज हैं, तो यू कैन सेंड द प्रपोजल टू SCL ऑल्सो. जैसे अभी दिसंबर में उन्होंने क्लोज किया, अब नेक्स्ट जो कॉल आएगा वो जून में आएगा, जून या जुलाई में आएगा. तो अगर वेफर पे स्पेस होता है, क्योंकि वेफर जब हम ट्रीट करते हैं तो मान लीजिए अगर पूरा 18 इंच का या फिर 24 इंच का वेफर है तो पूरे वेफर को प्रोसेस करना है. तो अगर मान लीजिए कुछ पार्ट ऑफ द वेफर बच रहा है तो वो अलाउ करते हैं कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए आप कर सकते हो. तो उन्होंने फिक्स एरिया रख रखा है. तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के कि हम फैब्रिकेशन जो पर 6 मंथ में हो रहा है उसको 3 मंथ्स में लाएं, ताकि हर 3 मंथ्स में करेंगे तो और ज़्यादा फैब्रिकेशन होगा. जब तक फैब्रिकेशन नहीं करेंगे, जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक डिवाइस का कैरेक्टराइजेशन या फिर डिवाइस उसमें कोई मतलब नहीं है. बाहर के डिवाइस ला के आप कोई मतलब नहीं. सर्किट डिजाइनिंग इटसेल्फ एक आपको पूरा फ्लो तब तक आप नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे जब तक कि आप सर्किट फैब्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि फैब्रिकेशन टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो ट्रांजिस्टर टाइप्स में अगर हम बात करें तो 3 टाइप के ट्रांजिस्टर्स की बात होती है: मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. हम मेनली फोकस कर रहे हैं मॉसफेट पे, क्योंकि जनरली क्योंकि सबसे मॉस की बात करें तो मॉस में रिलायबिलिटी इज वेरी हाई और मिनिचराइजेशन स्केलिंग इज इम्पॉर्टेंट और बहुत ईजी है इन केस ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर अपार्ट फ्रॉम दिस BJT और अदर डिवाइसेस. और सबसे बड़ा एडवांटेज है मॉस का कि द CMOS डिवाइसेस, जो कि स्टैटिक पावर डिसिपेशन इज ऑलमोस्ट 0. तो CMOS जनरली हम यूज करते हैं, इसलिए मॉस की बात करते हैं सब में. तो इट्स अ सिंपल मॉस ट्रांजिस्टर्स, a piece of polysilicon with the width of W and the length of L on the top of this thin layer of oxide defines the gate area. तो सिंपल मॉस स्ट्रक्चर है जिसमें 2 heavily doped region है N+N+. इन N+N+ को हम बोलते हैं, one is known to be a source or drain. Source means which supply the charge carriers. Drain means a terminal which collect the charge carriers. They are interchangeable. BJT में interchangeable नहीं है, but in case of MOS they are interchangeable. हम interchange कर सकते हैं. Then in between these two heavily doped region we have the gate. Gate can be a polysilicon और आजकल तो other materials use करते हैं for the gate terminal. And in between the gate and semiconductor we have the very thin layer of silicon dioxide that is known to be a so because of this
and sorry, back side. So a poly means a metal, and oxide and semiconductor. This structure defined as a MOS. Because of this structure, this device is known to be a MOS transistors, where we have the metal, oxide and semiconductors. तो source and drains are heavily doped. इनको इसलिए heavily doped करते हैं क्योंकि what we required a depletion layer. We doped this source and drain heavily doped इसलिए करते हैं क्योंकि depletion what we required that depletion layer should be at the outside the substrate पे होनी चाहिए. depletion layer अगर source और drain itself में हुई तो उसका barrier potential बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अगर barrier potential बहुत ज़्यादा होगा channel formation is very difficult. तो channel formation easy करने के लिए इनको heavily dope करते हैं और because they have to supply the charge carriers. जिसको charge carrier supply करना है उस पे the doping should be very high. तो हम हाई डोपिंग रखते हैं. सबस्ट्रेट यूजुअली टाइड टू बी मोस्ट नेगेटिव टर्मिनल. इसमें सबस्ट्रेट जो होता है पी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट इसको क्योंकि तीन टर्मिनल डिवाइस की बात कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट को हम मोस्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एनमॉस में और पी मॉस में हम जस्ट अपोजिट मोस्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. द एल इज एल इफेक्टिव. सो हम जनरली बोलते हैं दिस इज एल बट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ट्रांजिस्टर इज लेस कंपेयर टू बी एल क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग होती है. दैट इज टू बी अ ड्रेन ओवरलैपिंग एंड सोर्स ओवरलैपिंग इज देयर. So the effective length L is equal to L minus 2 LD. 1 LD is this and 1 LD is this. And ये हम करते हैं क्योंकि fabrication limitations है. तो because of the over diffusion के कारण क्या होता है कि the charge जब हम diffuse करते हैं impurities को तो वो इस तरफ भी डायरेक्शन में और इस तरफ डायरेक्शन में दोनों तरफ over diffuse होती हैं. तो लेंथ जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो जाती है. तो L effective इसको बोलते हैं L effective is equal to L minus 2 LD. देन मॉस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करें तो द व्हेन दिस टू हेवीली डोप्ड रीजन्स आर देयर एंड इफ यू अप्लाई द गेट पोटेंशियल बट द चैनल इज नॉट एग्जिस्ट. अगर हम गेट में वोल्टेज अप्लाई नहीं करें एंड इफ यू अप्लाई द हायर पोटेंशियल बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन देयर विल बी नो करंट. द करंट कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर विल बी अ चार्ज इन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन. सो इसको बोलते हैं चैनल फॉर्मेशन. ये प्रोसेस ऑफ द चैनल फॉर्मेशन है वेयर बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल. सबसे पहले जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं. दैट नेगेटिव आयन फर्स्ट क्रिएट द डिप्लीशन लेयर और अगर हम गेट पोटेंशियल को फर्दर बढ़ाएंगे तो इट विल अट्रैक्ट द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चैनल इज फॉर्म बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन. सो दिस चैनल एंड नाउ इफ यू अप्लाई द पोटेंशियल बिटवीन द ड्रेन और सोर्स सो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट. तो सिंपल वही फॉर्मेशन है कि अगर मुझे डिवाइसेस को ऑन करना है या डिवाइस को ऑफ करना है तो व्हाट वी रिक्वायर्ड वी कैन इजीली कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑन एंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस गेट पोटेंशियल. So if I apply some gate potential and that potential is more than to be threshold voltage, so device to be on, or this gate potential if is less than to be threshold voltage, so device to be off. तो simple switching करनी है तो हम on off device कर सकते हैं and we can easily control the on off function with the help of this gate potential. MOS character अगर threshold voltage की बात करें तो if VGS is less than to be a threshold voltage, the holes in the substrate are repelled from the gate area, leaving the negative ions behind that. तो जैसा हमने पहले देखा कि negative ions बन गए तो that is to be a depletion layer. And if the gate to source voltage is equivalent to be threshold voltage, तो a channel is formed, a channel is created, and that channel allow the flow of charge carrier from the source to drain. That is to be considered to be on device. Or if we further increase the gate to source potential, अगर हम gate to source potential को और increase करेंगे तो it will increase the width of the channel. वो चैनल के विड्थ को इंक्रीज करेगा तो मोर करंट विल फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन. तो करंट की वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज होगा. तो देयर आर थ्री कंडीशंस आर देयर. एक्चुअली मॉस को ऑपरेट करने के लिए थ्री कंडीशंस आर देयर. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट VGS इज लेस देन टू बी VTH कट ऑफ डिवाइस. देन VGS इक्विवेलेंट टू बी अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज. It to be a near threshold region. And if the VGS is more than to be a threshold voltage, so it's a strong inversion condition जिसको बोलते हैं. So there are the three types of or operating modes are there for the MOS transistors. Threshold voltage for long channel devices, the threshold voltage is defined with this phi ms plus 2 phi f plus Q depletion over COX, where these are these terms which are related to materials. The phi ms means work function difference. The 2 phi f means a bending, the work function difference. That should be a bending of the energy band should be 2 times so that they are in the same level. And the depletion charge over the oxide, that is again a voltage. So that is to be Q depletion layer charge divided by oxide capacitance. Then MOS, if we
talk about the MOS IV characteristics. When VGS is more than to be a VTH, current flows between the source and drain by drifting. That is to be a resistive current, and this is the voltage dependent resistance. So one of the application of the transistors if we have to design a variable resistance, voltage dependent resistance, so the MOSFET can be MOSFET must be operated in the linear region, triode region. Then only we can use these transistors to be a voltage dependent resistor. Then MOS IV characteristics में अगर हम बात करें तो in case of linear region, if we derive the current equation is this: ID equal to W is a width of MOSFET oxide capacitance and the some voltages. So the resistance offered by this MOSFET, that is to be R on, and that is to be 1 upon mu n Cox W by L VGS minus VTH. So that is to be a resistance offered by the transistors, but that resistance is only in the triode region. But the condition for the triode region is that the applied gate to source voltage should be a minimum, should be as small as possible. If you apply the large value of gate drain to source voltage, then the transistors move into the saturation region. And in case of saturation region, the current once the transistor reaches to the saturation region, the current get constant. So that is to be means हमारे लिए दो important reason है. One is to be linear region where the current is linearly increasing with the VDS voltage, and a saturation region where the current is saturated. Once the current gets saturated, the current is constant. So these are the MOS IV characteristics. In case of saturation region, we can consider this MOS as a constant current source. If the transistor is in saturation region, so transistor can be act as a constant current source. So we can design a constant current source, but the condition is that the MOSFET should be work into the saturation region. So this is equivalent dependency in saturation mode. ID is independent of the VDS. The most important feature is that in case of this current source, this voltage control current source, the value of this current source is independent to be VDS. But that is only for the long channel devices. But if we reduce the length of the devices, then this dependency, this independent parameters, the VDS, now the current is also a function of VDS. That is to be a channel length modulation effect. So in long channel devices, what we consider? In long channel devices, we assume that the current is constant in saturation region. But practically, the current is not constant. Current is linear function. The current is also a linear function of VDS. That is known to be a channel length modulation effects. And this channel length modulation effect is incorporated in this equation. And that is to be a factor. That is lambda factor is introduced here. The lambda is a channel length modulation parameters. So we define which model this equations. We can model this equation with the help of the equation ID equal to 1 upon 2 mu n Cox W by L VGS minus VTH plus 1 plus lambda VDS. So this lambda is known to be a channel length modulation parameter. Then how to find this value of the channel length modulation parameter? So we can find with the channel length modulation parameter. Practically we can find with the help of this circuit arrangement, where we put the two transistors, we apply the same bias voltages, and we can find the value of X and Y. And from this equation, if we put the values of currents, we can find if we know the value of ID1 and ID2, we can find the value of lambda. So this is a practical setup which is generally used to calculate the channel length modulation coefficient or channel length modulation parameter. Or the one more controlling terminals, if we required more controlling in the transistors, so we can control the transistor with the help of body biasing also. Means apart from this source, drain and gate terminal, the substrate terminal is also there. If you apply the potential at the substrate terminal, so we can control the threshold voltage of the transistor also. So that is to be a fourth controlling terminal of the MOSFETs. तो जितना नया रिसर्च है वो सब बेस्ड इसी पे है कि हम फोर्थ टर्मिनल को कैसे कंट्रोल करें. बिकॉज जैसे ही हम डिवाइसेस को श्रिंक कर रहे हैं, व्हेन वी श्रिंक द डिवाइसेस, हम साइज को कम कर रहे हैं, एल को कम कर रहे हैं, वैसे वैसे कंट्रोलिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो रहा है. अब इस कंट्रोलिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट द अदर डिवाइसेस डू दैट की बैक साइड गेट हम लगाएं, उस बैक साइड से भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कंट्रोल करें. तो दैट इज टू बी डबल गेट मॉसफेट, ट्रिपल गेट मॉसफेट, गेट ऑल अराउंड. तो ये सब फ्यूचर डिवाइसेस हैं. तो फ्यूचर डिवाइस का कॉन्सेप्ट यही है कि हम, क्योंकि जैसे जैसे हम श्रिंक करेंगे, अभी बहुत सारे पैरामीटर्स में आपको बताऊंगा जिसमें हम दैट इज टू बी थ्रेशोल्ड वोल्टेज रोल ऑफ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंट्रोल ही खत्म हो गया. अगर डिवाइसेस और श्रिंक हो गया तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का रोल खत्म हो गया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंट्रोल खत्म हो गया. तो डिवाइसों को कैसे ऑन ऑफ करेंगे आप, तो दैट इज रिक्वायर्ड. हम उसके लिए क्या करते हैं, वी पुट अ
अदर गेट मीन्स हम एक बैक गेट यूज करते हैं, तो बैक गेट इज सेम एज अ सबस्ट्रेट, या पी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है, इस पे अगर हम इफ यू अप्लाई द पोटेंशियल तो इट इंक्रीजेज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो इट इंक्रीजेज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ यू अप्लाई द सबस्ट्रेट टू बायस वोल्टेज, सबस्ट्रेट टू बायस वोल्टेज मीन्स अगर हम इस जिसको हम मोस्ट नेगेटिव टर्मिनल बोल रहे थे इसकी जगह हम कुछ पोटेंशियल लगाएंगे तो इट विल चेंज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस, so that is to be a fourth controlling terminal of the devices. ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि अगर हम Vx पे कुछ पोटेंशियल लगाते हैं गेट सोर्स और द बल्क सोर्स पोटेंशियल, तो विद जीरो पोटेंशियल द जीरो गेट दिस बायस पोटेंशियल, दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, बट अगर हम कुछ बल्क पोटेंशियल लगाएंगे तो इट फॉलो दिस कैरेक्टरिस्टिक, मींस अर्ली कट इन वोल्टेज आ जाएगा। तो अगर आपको डिवाइसेस को फास्ट ऑपरेट कराना है, कम थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे डिवाइस को ऑपरेट कराना है, तो यू कैन यूज दिस टेक्निक आल्सो। सिलिकॉन में जैसे 0.7 होता है जनरली, हाँ हाँ हाँ, हम कम कर सकते हैं, उसको भी कम कर सकते हैं, उसको भी कम कर सकते हैं। अगर हमें अर्ली थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको 0.7 नहीं चाहिए, आपको 0.3 पे भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए, तो आप बायस वोल्टेज लगा दीजिए उसको। बट इसका इफेक्ट क्या होता है, मॉसफेट में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं वो बताता है आपको, ये नॉन लीनियरिटी के कारण। मॉसफेट में हम अगर हम बल्क पोटेंशियल नहीं लगाते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि द वी इन और वी आउट दे आर लीनियर फंक्शन, और कोई भी लीनियर फंक्शन मॉडल है तो इट्स वेरी इजी। बट जब हम बल्क पोटेंशियल लगा देते हैं तो दे आर नॉट लीनियर, वी इन और वी आउट जो होता है उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज नॉट टू बी लीनियर, तो डिवाइसेस और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम मॉस को विद बल्क पोटेंशियल आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो और क्या ऑप्शन है, विल सी दैट ऑल्सो। तो अब वही बात हुई कि हम सबस्ट्रेट को कैसे कनेक्ट करें, मतलब हम जनरली हमें अगर हमें वेल कंट्रोल चाहिए तो आप पोटेंशियल लगाइए, पर जब पोटेंशियल लगाएंगे तो वी इन और वी आउट का जो रिलेशन रहेगा वो लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा, नॉन लीनियर रिलेशन रहेगा, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो जनरली हम क्या करते हैं, बल्क को हम मोस्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ताकि वो लीनियरिटी खत्म नहीं हो, लीनियर फंक्शन रहे। तो इसके लिए हम ट्रिपल वेल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ताकि अगर हमें कंट्रोलिंग वोल्टेज लगाना है तो हमें वी हैव टू हैव अ ट्रिपल वेल मीन सबस्ट्रेट फिर डी पेन फिर पी एन, अदरवाइज हम ट्विन टब यूज करते हैं। ट्विन टब में वी हैव द ओनली वन वेल, एन वेल होता है केवल, पर यहाँ पे ट्रिपल वेल यूज किया है। बट ट्रिपल वेल इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर हमें कंट्रोलिंग टर्मिनल चाहिए तो मींस अगर कंट्रोलिंग टर्मिनल चाहिए तो आपके पास दो डिसएडवांटेज होगा। अगर मॉस को एज ए आपको मॉस के अगर बॉडी टर्मिनल को आपको एज ए पोटेंशियल टर्मिनल यूज करना है तो आपके लिए दो डिसएडवांटेज हो गए, एक तो लीनियरिटी आप खत्म हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि फैब्रिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि आप जितने वेल क्रिएट करेंगे उतना फैब्रिकेशन स्टेप्स बढ़ता जाएगा, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन जैसा हमने देखा कि दो रीजन ऑफ ऑपरेशन हो गए, एक लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन हो गए, तो लीनियर एक और सैचुरेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो अगर कोई मॉसफेट है, अगर उसका गेट टू ड्रेन वोल्टेज इक्वल है तो दैट इज टू बी सैचुरेशन, और अगर इनका जो डिफरेंस है वो VTHN के बराबर है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है, तो दैट इज टू बी इन द एज ऑफ ट्रायोड रीजन और लीनियर रीजन। ऐसा ही PMOS में अगर गेट टू ड्रेन सोर्स दोनों सेम पोटेंशियल पे, दैट इज टू बी सैचुरेशन रीजन, और अगर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वोल्टेजेस टू बी अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा डिफरेंस हो गया तो दैट इज टू बी इन सैचुरेशन रीजन। तो हम तीन रीजन की बात कर रहे हैं, ऑन ऑफ और एक मिडिल रीजन की बात कर रहे हैं। अब मॉसफेट में जो मतलब जो लोड होता है दैट इज टू बी कैपेसिटिव लोड, इट्स नॉट रेजिस्टिव लोड, इसलिए वो स्लो होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनल कैपेसिटेंस होते हैं। अगर एक मॉस की बात करें तो इंटरनल कैपेसिटेंस देखें तो देयर आर द 5 डिफरेंट कैपेसिटेंस आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जंक्शन कैपेसिटेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द साइड वॉल कैपेसिटेंस आल्सो। तो इन सबको मिला के बहुत सारा कैपेसिटेंस होता है, और इन सबका इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज टू बी लोड कैपेसिटेंस, जिसको हम बोलते हैं लम्प्ड कैपेसिटेंस और CL। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें डिवाइस को फास्ट ऑपरेट कराना है और स्विचिंग एक्टिविटीज फास्ट कराना है तो दिस कैपेसिटेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इन कैपेसिटेंस को हमें लो रखना पड़ेगा, अदरवाइज वही सिंपल है, R/C है, रेजिस्टेंस फिक्स है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा तो आपका टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो डिले भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें लो डिले डिवाइसेस बनाना है, फास्ट डिवाइसेस बनाना है, तो दिस लम्प्ड कैपेसिटेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। अब इनको कैसे पॉसिबल कर सकते हैं लो करना, कि हम यहाँ पे जो कि ये तीन कैपेसिटेंस दिख रहे हैं तो इनको हम विद द हेल्प ऑफ बायसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट कि विद द हेल्प ऑफ बायसिंग वी कैन कंट्रोल द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द ट्रांजिस्टर्स, कि अगर कट ऑफ रीजन में है तो कैपेसिटेंस अलग होगा, सैचुरेशन में है तो कैपेसिटेंस अलग होगा, और ट्रायोड में है तो कैपेसिटेंस अलग होगा। हम जनरली CL लिख देते हैं, बट हम जनरली उसका ऑपरेटिंग रीजन नहीं देखते हैं। पर अगर हमें और माइन्यूट कैलकुलेशंस करना है डिले की तो द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर्स मस्ट बी नो, वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी कैपेसिटेंस चेंज होते हैं। जैसे ये ग्राफ है जिसमें VGS और गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस की बात हुई कि एक्यूमुलेशन के समय वी हैव हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस,
देन जैसे जैसे हम VGS बढ़ाएंगे वैसे वैसे जीरो कैपेसिटेंस होगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हुआ तो कैपेसिटेंस शुड बी अ कांस्टेंट कैपेसिटेंस, हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज देयर। देन हाई नॉन लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और हमें इसके लिए फिर मिलर इफेक्ट्स के थ्रू हम बाईपास कैपेसिटेंसेस यूज करके जो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को हम नलीफाई करने का या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल मॉडल है, स्मॉल सिग्नल मॉडल है, जो कि बहुत रफ और बहुत वेग मॉडल है फॉर द स्मॉल सिग्नल कि अगर हमें बहुत कम वोल्टेजेस पे काम करना है, दैट इज टू बी जो करंट फ्लो होगा वो होगा दैट इज टू बी GM VGS, और जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज टू बी R0। R0 इज अ resistance between a gate to drain to source, and GM VGS, GM is a transconductance parameter, or VGS is to be a voltage, the gate to source voltage. So it acts as a current control voltage control current device, current source. तो ये voltage control current source की तरह एक्ट कर रहा है। पर अगर हम इसको सिंपल saturation मोड में काम करेंगे तो only this parameter, this part is important, क्योंकि ये पार्ट जीरो हो जाएगा लगभग, तो इट एक्ट एज अ करंट सोर्स। अगर हम इसको लीनियर रीजन में काम कर रहे हैं तो दैट इज, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो हमें स्विचिंग करना है दोनों पार्ट्स में, ट्रायोड और सैचुरेशन रीजन में। तो दिस इज अ स्मॉल सिग्नल मॉडल, और वो हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस VGS। अब स्पेशल केस में वही है कि एक ट्रांजिस्टर को आप यूज कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, और इसको यूज कर सकते हैं एज अ गेन पैरामीटर्स, दैट इज टू बी एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इस बायस पॉइंट को आप वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस वेरी होगा, और अगर आप गेट और सोर्स को या फिर गेट और ड्रेन को सॉर्ट कर देंगे तो इट्स टू बी 1/GM। तो हाँ, जनरली हम बोलते हैं कि 1 into R/GM, R into 1/GM शुड बी 1, मीन ये कांस्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो गेन बढ़ जाएगा, गेन कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो देयर शुड बी सम ट्रेड ऑफ पॉइंट बिटवीन द गेन एंड द रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो किस मोड में काम कराना है वो डिसाइड करता है कि कितना गेन चाहिए आपको। अब अगर ये ट्रांजिस्टर जितना बात किया हमने, दैट इज टू बी अ लॉन्गर डिवाइसेस ट्रांजिस्टर, जिनके लेंथ बहुत ज़्यादा है। पर अभी जो बात कर रहे हैं हम स्केलिंग करेंगे इनको, अभी 180 नैनोमीटर्स की बात कर रहे थे, पर हम इसको स्केल डाउन करेंगे, 10 नैनोमीटर्स पे स्केल डाउन करेंगे, 7 नैनोमीटर्स पर स्केल डाउन करेंगे, तो ट्रांजिस्टर का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। द इक्वेशंस, द करंट वोल्टेज डिपेंडेंसी इक्वेशन सब कुछ चेंज होता है। तो थोड़ा सा वो इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर न्यू फीचर डिवाइसेस क्या है हम उसकी बात करेंगे। कितना टाइम है मैडम? 15 मिनट्स हैं। 15 मिनट्स। अच्छा ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मैंने GPDK से लिया है। दैट इज टू बी एक जनरल पर, जब कैडेंस हम परचेज करते हैं तो हमको GPDK फाइल मिलती है, दैट इज टू बी GPDK 90 नैनोमीटर की फाइल है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या लिमिटेशंस और कौन कौन सी मेटल्स की क्या डिस्टेंस है, कितना नैनोमीटर्स होता है। ये 90 नैनोमीटर्स की फाइल, 90 नैनोमीटर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ गेट एंड सोर्स, जो गेट और सोर्स का जो डिफरेंस है दैट इज टू बी 90 नैनोमीटर्स। तो इन जनरली हम ये डिस्टेंस से बताते हैं कि डिवाइस का क्या साइज है। अगर 7 नैनोमीटर्स की बात कर रहे हैं तो गेट और सोर्स और ड्रेन का जो डिस्टेंस है दैट इज टू बी 7 नैनोमीटर्स। बाकी सब मेटल्स हैं, P+ सबस्ट्रेट हैं, डिफ्यूजन एरिया है, पॉलीसिलिकॉन है। तो GPDK जिसमें 1 लेवल ऑफ पॉलीसिलिकॉन है, 7 लेवल ऑफ मेटल्स हैं, 7 लेयर मेटल्स की हैं, और 1.2 वोल्ट्स हैं। अब वही बात हो रही है कि ट्रांजिस्टर को जब स्केल डाउन करते हैं तो दो मेथड्स होती है। एक होती है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, और एक होती है वेरिएबल फील्ड स्केलिंग। तो हम किस तरह के ट्रांजिस्टर को किस तरीके से यूज़ करना है उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं। कांस्टेंट ई फील्ड स्केलिंग जनरली हम करते हैं, इसमें वोल्टेज एंड डायमेंशंस बोथ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स आर स्केल्ड बाय द सेम फैक्टर की, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए, सारी डायमेंशन को आप स्ट्रिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज नोन टू बी अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्केल डाउन कर देते हैं, दैट इज नोन टू बी अ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, सॉरी वेरिएबल फील्ड स्केलिंग और कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग। अब स्केलिंग क्या हुआ कि डायमेंशंस को हमने 0.7 फैक्टर से अगर स्केल डाउन किया, दैट इज टू बी बीटा, तो सप्लाई वोल्टेज को भी स्केल होना है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को भी स्केल करना है। तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, इससे एक इफेक्ट तो ये होगा कि आपका जो करंट है वो बीटा टाइम्स स्केल डाउन हो जाएगा, डिले है वो भी 0.7 मतलब 30 टाइम्स रिडक्शन हो जाएगा, और एनर्जी है वो बीटा स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि डिपेंडेंसी जो VDD पे है वो स्क्वायर डिपेंडेंसी है, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर आपको लो एनर्जी डिवाइसेस पे जाना है तो आपको स्केलिंग करनी ही पड़ेगी। अब जब नैनोमीटर्स डिवाइसेस की बात करते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास। सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो लीकेज, वेरिएबिलिटी, रिलायबिलिटी, और कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है इंक्रीज्ड मोबिलिटी हाई हो जाती है तो फास्ट, और इम्प्रूव कंट्रोल। ये इम्प्रूव्ड कंट्रोल पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपने किस श्रिंक या किस कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग लिया है या कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग लिया है, उस पर डिपेंड करता है कि कंट्रोलिंग कितना इम्प्रूव्ड हुआ है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है वेलोसिटी सैचुरेशन,
और थ्रेशोल्ड वोल्टेज वेरिएशन जिसको बोलते हैं रोल ऑफ, लीकेज करंट और डिक्रीजिंग आई ऑन ओवर आई ऑफ रेशियो। जैसे हमने पहले बात किया था कि जब कोई डिवाइस ऑन है और ऑफ है तो उनके बीच में जो करंट के बीच में जो डिफरेंस है इट शुड बी वेरी हाई, मतलब हमें सिग्निफिकेंटली पता होना चाहिए कि ये ऑन करंट है या ऑफ करंट है। तो जैसे हम डिवाइस को श्रिंक करते हैं, अगर वो एल वाला जो डिवाइस है उसको मैंने श्रिंक कर दिया, ऐसे डिवाइसेस की डायमेंशन श्रिंक कर दी, तो 4 इंपैक्ट होते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी सैचुरेशन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज रोल ऑफ जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंट्रोल कम हो जाता है, दैट इज टू बी लीकेज करंट बहुत हाई हो जाते हैं, और डिक्रीजिंग इन आई ऑन एंड आई ऑफ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम डिवाइसेस को श्रिंक कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे थे 100 नैनोमीटर्स की डिवाइसेस की, अगर हम 65 नैनोमीटर की डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज टू बी अर्ली सैचुरेशन वोल्टेज यहाँ पे कहीं है, बट बिकॉज डिवाइसेस की डायमेंशंस कम हो गए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कंट्रोल कम हो गया, तो अर्ली सैचुरेशन डिवाइस पहले ही सैचुरेटेड हो जाएगी। देन डिक्रीज इन आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि जो स्लोप होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो आउटपुट रेजिस्टेंसेस भी कम हो जाएंगे। और आईडी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ वीजीएस, तो यहाँ लीनियरिटी शो होनी चाहिए फंक्शन की, पर वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेंगे। तो 3 इफेक्ट्स हो गए, अर्ली सैचुरेशन आ गया, फिर आउटपुट रेजिस्टेंस कम हो गया, और जो लीनियरिटी थी करंट वोल्टेज में, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज रोल ऑफ के कारण वो लीनियरिटी भी कम हो जाएगी। तो इनको कैसे ओवरकम करेंगे, दैट इज मॉडल फॉर आउटपुट रेजिस्टेंस, क्या आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है। तो कुछ इफेक्ट्स हैं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यूज किया, दैट इज टू बी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट है, और दूसरा है ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो डिबल इफेक्ट्स, और इनसे क्या होता है कि व्हाट वी कंसिडर कि अगर हम डिबल इफेक्ट में अगर हम VDS और ID की बात करें तो एक वैल्यू के बाद जो वैल्यू ऑफ जो करंट है वो करंट रीचेस टू बी मैक्सिमम वैल्यू, इसका कम होने लग जाता है। और ये जो आउटपुट करंट है दैट इज टू बी कांस्टेंट होना चाहिए, पर ये कांस्टेंट ना होकर धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाता है। और ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर आप VDS बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो देयर शुड बी डिवाइस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिवाइस हमारी डैमेज हो जाएगी। तो दिस इज थ्रेशोल्ड एंड सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। हम ये एज्यूम करके चलते हैं डिवाइसेस में, अगर लॉन्ग डिवाइसेस तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही कंडक्शन स्टार्ट होगा। मींस अगर हम 0.4 वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान रहे हैं तो जो करंट कंडक्शन होगा वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही होगा। लॉन्ग डिवाइस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर अगर डिवाइस की डायमेंशंस बहुत कम है तो अगर हम देखें तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिखा रहा है बोल रहा है कि लो डिवाइसेस के लिए कि 0.4 वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, बट उसके पहले ही 0.3 वोल्टेज के आसपास ही कुछ करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया, 0.3 वोल्टेज के आसपास ही करंट इंक्रीज हो गया, तो दैट इज नोन टू बी अ सब थ्रेशोल्ड करंट। तो सब थ्रेशोल्ड करंट एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे ऑन होगा, उसके बाद ऑफ होगा, ऑन ऑफ स्विचिंग हम यहाँ कर रहे हैं, और अगर हमने ये वोल्टेज लगा के रख दिया तो इसमें ऑलरेडी कोई करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट टू बी अ लीकेज करंट। तो क्या करेगा, जो बैटरी पावर है वो अननेसेसरी ड्रेन करेगा। तो हमें ये भी देखना है कि हम लीकेज करंट को कैसे कम करके रखें। फिगर्स में कुछ पता नहीं क्यों गड़बड़ है। हम ये बता रहे हैं कि जब बॉडी बायसिंग हमने लगाया, रिवर्स और फॉरवर्ड बॉडी बायसिंग लगाया है, तो उससे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ ये बोल रहा है कि आप ठीक है कि आपके पास बॉडी टर्मिनल है, बट अगर टेक्नोलॉजी नोड 130 नैनोमीटर्स का टेक्नोलॉजी नोड है तो आपको बॉडी से जो वोल्टेज कंट्रोल है वो 210 मिली वोल्ट्स का होगा, 210 मिली वोल्ट का आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। बट जैसे जैसे डिवाइस को श्रिंक करते हैं, आप 90 नैनोमीटर्स पे आते हो, आपके पास रेंज केवल 95 मिली वोल्ट बचती है। और अगर और डिवाइस को श्रिंक करते हो, 65 नैनोमीटर्स पे आते हो, आपके पास रेंज कितनी बचती है, केवल इज ऑफ 55 मिली वोल्ट्स। मतलब जैसे जैसे हम डिवाइस को श्रिंक करेंगे वैसे वैसे सब्सट्रैक्ट बायसिंग की जो वोल्टेज लिमिट है वो भी कम होने लग जाएगी, और अगर वोल्टेज लिमिट कम होगी तो कंट्रोलिंग भी कम हो जाएगी। तो अब इसको कैसे इफेक्टिवली हम अचीव करें, तो ये लॉन्ग डिवाइस शॉर्ट डिवाइसेस का ही है, ये डिबल इफेक्ट है, इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं ताकि मेन पार्ट जो है। तो अब हमें लीकेज करंट को कम करना है और उसकी कंट्रोलिंग फास्ट करनी है। तो अगर हमें डिवाइस की कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना है, बैक गेट से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइस को श्रिंक करेंगे तो हमने देखा कि वोल्टेज रेंज बहुत कम आ गई है, पर अगर हमें ज़्यादा रेंज के लिए अगर बैक डिवाइस को कंट्रोल करना है तो कुछ अलग डिवाइसेस हम प्रपोज करते हैं, दैट इज टू बी उस डिवाइसेस में क्या चैलेंज होंगे कि वी नीड टू बी हायर मोबिलिटी, रिड्यूस लीकेज और बेटर कंट्रोल। तो हम ये कैसे अचीव करेंगे, तो ये कुछ न्यू डिवाइस है, दैट इज टू बी स्ट्रेंथ डिवाइसेस हैं, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर है, डुअल गेट डिवाइसेस हैं, वेरी हाई मोबिलिटी डिवाइस है और मेम्स ट्रांजिस्टर्स हैं। तो डबल गेट मॉसफेट ऑन SOI, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, दैट इज टू बी FinFET और दैट इज टू बी GPSY। जरा सा स्ट्रक्चर देखते हैं और इनका कि स्ट्रेंथ सिलिकॉन है। हमने क्या किया यहाँ पे कि सिंपल सिलिकॉन चैनल बनाने की जगह हमें ऐसा मटेरियल जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम और सिलिकॉन जर्मेनियम के सोर्स और ड्रेन बनाए। तो ये क्या करते हैं, जो चैनल के जो बीच के लेयर है
उसको स्ट्रेस में रखते हैं। जब ये स्ट्रेस में रखेंगे तो क्या होगा कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएगी। जब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, ऑन करंट को इंप्रूव करेगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन डिवाइसेस, मतलब हम उसको स्ट्रेस में रखते हैं डिवाइस को, ऑलरेडी जो चैनल पार्ट है उसको हम स्ट्रेस में रखें। अब स्ट्रेस में कैसे रखें, तो हम अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं, आजकल बहुत सारे नए नए मटेरियल्स यूज करते हैं ताकि स्ट्रेस लेवल कितना हो, ऐसा भी स्ट्रेस लेवल नहीं हो कि वो ब्रेक ही हो जाए, इतना स्ट्रेस में रखें कि वो फट जाए बीच में से, डिवाइस ही खराब हो जाए। तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल पे लाके डिवाइस को, अब वो स्ट्रेस लेवल कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर द वे हम बहुत सारे अदर पैरामीटर्स के सिलिकॉन जर्मेनियम है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के सोर्स ड्रेन यूज करके हम अलग अलग स्ट्रेस पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं ताकि यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाए, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ जाएगा। तो लीकेज करंट अगर इस वाले की डिवाइस देखें तो इंप्रूव्ड ऑन लीकेज करंट ट्रांजिस्टर्स, पर लीकेज करंट है वो 84 से 97% कम हो गया, एंड एक्टिव पावर भी 15% रिड्यूस हो गई। ये दो एग्जांपल दे रखे हैं कि जब हम डिवाइस को स्ट्रेस में रखते हैं, स्ट्रेन डिवाइसेस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेन सिलिकॉन बोलते हैं, तो उसमें ऑन ऑफ का रेशियो भी बहुत बढ़ जाता है। ऑन करंट जो 25% बढ़ जाता है और ऑफ करंट जो होता है वो 40% कम हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम एनमॉस की बात करें तो एनमॉस में 10% करंट बढ़ गया और 20% करंट कम हो गया। तो अगर हम स्ट्रेस में रखेंगे डिवाइसेस को या चैनल पार्ट को तो ये इफेक्ट होते हैं, बट स्ट्रेस में रखना इज डिफिकल्ट क्योंकि मटेरियल्स को बहुत इजीली आप फैब्रिकेट करना इतना पॉसिबल नहीं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को आप फैब्रिकेट कर पाओ, क्योंकि डिवाइस डायमेंशन इज वेरी लो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7 नैनोमीटर्स की, और 7 नैनोमीटर्स पे किसी डिवाइस को स्ट्रेस में रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके अलावा है अगर स्ट्रेस के अलावा अगर हम बात करें तो हेटेरो जंक्शंस, जैसे मैडम ने बहुत सारी बात करी कि हेटेरो जंक्शंस हम यूज़ करें, या हम अलग अलग जंक्शन डिवाइसेस की बात करें तो सिलिकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन हेटेरो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। फिर ये फुली डिप्लीटेड, अगर हमें लीकेज करंट को कम करना है तो लीकेज करंट को कम करने के लिए एक ही तरीका है कि हम जो सब्सट्रैक्ट है वो सिलिकॉन सब्सट्रैक्ट के बजाय हम क्या करें, इंसुलेटिंग सब्सट्रैक्ट कर दें, इंसुलेटर बना दें, तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, SOI डिवाइसेस बोलते हैं। तो थिन ऑक्साइड लेयर है, फुल्ली डिप्लीटेड है, सोर्स ड्रेन है, इनके बीच में कोई भी सेमीकंडक्टर चैनल नहीं, तो फुल्ली डिप्लीटेड है, तो दैट इज नोन टू बी SOI डिवाइसेस। और SOI डिवाइसेस का हम जनरली यूज करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ लीकेज करना। अगर लीकेज कम करना है तो हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। फिर डबल गेट मॉसफेट हो गया, एक गेट है फ्रंट साइड में, एक गेट बैक साइड में आप फैब्रिकेट कर दो। डबल गेट मॉसफेट है, वोल्टेज कंट्रोल जो होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वो ज़्यादा अच्छे से होगा, तो इसको बोलते हैं डबल गेट मॉसफेट। डबल गेट मॉसफेट के अलावा जो अभी करंट टेक्नोलॉजी है दैट इज टू बी फिनफेट। इट्स अ फिन, हमने यहाँ पे फिन ऑफ गेट यूज किया है, इसको गेट ऑल अराउंड भी बोलते हैं, GA भी बोलते हैं, जिसमें सोर्स और ड्रेन को हमने सब तरह से कंट्रोल किया है। अभी हम मॉसफेट को केवल ऊपर के गेट से कंट्रोल करते हैं। अब नाउ दिस गेट, जो भी गेट है वो पूरा चैनल को कवर किया हुआ है 3 तरीके से, तो यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज, तो वो बेटर कंट्रोल होगा। अगर बेटर कंट्रोल होगा तो डिवाइस का जो करंट ID और VGS का जो इफेक्ट है वो बता रहे हैं कि ऑन ऑफ करंट में जो आपका डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, लीकेज करंट भी कम होगा, और कंट्रोलिंग ऑफ गेट वोल्टेज इज सफिशिएंट फॉर अ नैनोमीटर डिवाइसेस। तो जो फिनफेट है ये 1999 में प्रपोज किया था। ये बैक गेट डिवाइसेस हैं जिसमें एक गेट के साथ 2 गेट यूज किए हैं, एक गेट फ्रंट में है, एक गेट बैक साइड में है, इसको बोलते हैं डबल गेट मॉसफेट। ये न्यू ट्रांजिस्टर जो फिनफेट है ये गेट है और इस गेट में बहुत सारे सोर्स और बहुत सारे ड्रेन है। ये फिन हो गया, एक तरीके से फिन हो गया। इस फिन में गेट और सोर्स है, और इसको कंट्रोल करके, क्योंकि गेट ऑल अराउंड है, इसको कंट्रोल करके हम करंट कंट्रोल करते हैं। ये इंटेल का ट्राई गेट है। फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस में कुछ लोग जीरो ऑफ करंट या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ACT की बात करते हैं, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करंट फ्लो करेगा, दैट इज टू बी अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स। कुछ लोग थिन फिल्म की बात कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स की ट्रांजिस्टर्स की भी बात कर रहे हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब ट्रांजिस्टर या ऑप्टिकल डिवाइसेस की भी बात हो रही है। एक ये अभी रिसेंटली हमने रिसर्च पेपर पढ़ा था, दैट इज टू बी अ MEMS, वहाँ पे उन्होंने P+ और इसमें इम्पैक्ट आयोनाइजेशन रीजन यूज़ किया है। अब मुझे पता नहीं क्यों यूज़ किया, हमने पूरा नहीं पढ़ा इसको, बट एक पॉलीसिलिकॉन है, पर पॉलीसिलिकॉन की और इसके बीच में गैप भी दिया हुआ है, तो इट्स नॉट अ वेल और फुल्ली कंट्रोल्ड, कुछ एरिया छोड़ा है जो कि इम्पैक्ट आयोनाइजेशन रीजन है, जिसके कारण करंट की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये डिवाइसेस यूज़ किया है, फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस यूज़ किया है। तो समरी, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब सिलिकॉन इज अ ऑप्शन। अगर अभी देखें तो कोई सिलिकॉन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिलिकॉन इज ओनली द मटेरियल विच इज़ यूज फॉर द डिवाइस फैब्रिकेशन, जो करंट डिवाइस फैब्रिकेशन होता है। बट जैसे हमें वो फंक्शंस इंक्रीज करना है, VLSI को और ULSI या अदर टेक्नोलॉजी नोड्स पे ले जाना है, तो वी हैव टू श्रिंक द डिवाइसेस, स्केलिंग करना पड़ेगा, और स्केलिंग में सारे इम्पैक्ट्स आएंगे। तो इन इम्पैक्ट को कैसे ओवरकम करें, तो अलग अलग डिवाइसेस आ रही हैं, अलग अलग डिवाइसेस से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिवाइस स्ट्रक्चर प्रपोज किए हैं, ये सब जो काम है डिवाइस स्ट्रक्चर का जो काम है वो सब TCAD में किया हुआ है, सेल्वेको में किया, TCAD में किया हुआ है लोगों ने।
तो अलग अलग डिवाइस स्ट्रक्चर आप प्रपोज कर सकते हैं, अलग अलग मैटर। स्ट्रेन वाला जो है उस पर हमने एक पेपर पब्लिश किया था बहुत पहले कि हम अगर चैनल को स्ट्रेस में रखें तो क्या इफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस इफेक्ट्स का चैनल करंट पे हमने ऑन ऑफ करंट पे देखा था इम्पैक्ट्स, और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था उसका। और अलग अलग मटेरियल्स टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, मॉडलिंग भी हो गया, डिवाइसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सर्किट डिजाइनिंग भी हो गया। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। तो वाइड फील्ड है, आपको सारे टूल्स चाहिएंगे। अगर आपको डिवाइस फिजिक्स करना है तो टीकैड चाहिए, अगर आपको सर्किट एनालिसिस करना है तो आपको कैडेंस चाहिए। तो दोनों टूल्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैटलैब तो है मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने ड्यूल गेट कंसेप्ट बताया, दैट इज फॉर बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल, मतलब जो साइज है 6 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर आ रही, हाँ। तो उसमें पॉसिबल है ड्यूल गेट। इसलिए वो फिनफेट की बात कर रहे हैं, ड्यूल गेट, क्योंकि बैक साइड गेट बनाना इज डिफिकल्ट। तो फिनफेट की बात करें, उसमें गेट ऑल अराउंड भी है। नैनो वायर्स की बात भी करते हैं, जिसमें एक वायर है, पूरा गेट का वायर बना हो, जिसमें एक सोर्स और एक ड्रेन है। तो डिवाइस स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब डिवाइस स्ट्रक्चर है, सर्किट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। फिनफेट इज अभी अवेलेबल, जितने हमारा ये फ़ोन बने हैं सारे फिनफेट डिवाइसेस पे, सारे फिनफेट है। 7 नैनोमीटर मतलब फिनफेट, 7 नैनोमीटर के जो बियॉन्ड है, इवन दो लोग बोलते हैं कि 10 नैनोमीटर के बियॉन्ड जितना है वो सब सिर्फ फिनफेट है। ट्रेडिशनल मॉस नहीं है कुछ भी, सब फिनफेट है या फिर डीजी मॉसफेट्स। जिसमें वो भी टेक्नोलॉजी थिकनेस ऑफ दी जो ऑक्साइड लेयर, हाँ, उससे भी मतलब कम या ज्यादा उसको इम्पैक्ट। हाँ, वो अब थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, सिंपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह लोग आजकल सैंडविच स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि हाई के की 2 लेयर यूज़ कर दिए, फिर बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ कर दिया। पर उसमें ये देखना होता है कि जब हम सिलिकॉन के ऊपर कोई और लेयर ग्रो करते हैं तो वो नीचे लेयर पे क्या इम्पैक्ट कर रही है। ऐसे ही आप कुछ भी मटेरियल की लेयर ग्रो कर दोगे तो वो स्टिकी होना चाहिए, उस पर चिपक भी देना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो उखड़ ही जाए थोड़ी देर में। तो मतलब सारा इंजीनियरिंग करके हमें पता होना चाहिए कौन सा डिवाइस या फिर हमें क्या रखना। तो सैंडविच लेयर जनरली यूज़ करते हैं लोग कि पहले हाई डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया, फिर बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ किया, फिर हाई डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया। तो सेम थिकनेस में आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप सीधी सी, तो हाई कैपेसिटेंस वैल्यूज मिलेंगी। तो रेफरेंसेस यूज़ किया है लास्ट स्लाइड में। ये बुक है, बहुत अच्छी है, चंद्रकाशन की जो बुक है, बुक इन रेबे चंद्रकाशन एंड टॉर एंड निंग। बाकी आर्टिकल्स यूज़ किए हमने कुछ। तो ऑन टाइम खत्म कर दिया मैंने। एनी क्वेश्चन? सर आपने बोला था कि कटिंग वोल्टेज को हम कर सकते हैं, इट इज द कटिंग वोल्टेज। तो आपने सर उसकी बात की थी बल्क पोटेंशियल की। हाँ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आप बोल रहे थे कि मॉसफेट में यूज नहीं कर सकते। नहीं, मॉसफेट में मॉसफेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो वो इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो है वो नॉन लीनियर हो जाएंगे, तो वो इफेक्ट हमारा डिफिकल्ट है। और उसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करें वो ट्रिपल वेल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, तो फैब्रिकेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम पे एप्लीकेबल है जो आपका। हाँ, फिनफेट तो हैं फैब्रिकेशन।